गुड इवनिंग, नमस्कार, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल, जय श्री राम। ओके, सो आज शाम की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा कोट बोलूँगी कि वो इंसान ही क्या जो सपने ना देखे, और सपने देख के उसको हकीकत करना है तो काफ़ी मुश्किलों से पार होने के लिए वो ताकत होनी चाहिए। एंड आई वुड रियली थैंक ऑल ऑफ यू कि आप आज हरिओम सोसाइटी हमें ये बता रही है कि हम सपने देख भी सकते हैं और हमारे में ये ताकत है कि हम हकीकत करेंगे। आपकी अटेंडेंस आज बता रही है, सो प्लीज़ क्लैप फॉर योरसेल्फ। जिस तरह से हम एक साथ मिलकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं, बस थोड़े ही पड़ाव बाकी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हम एकजुट होकर इस सपने को हकीकत में बदलें। टुडे वी हैव विद अस मेफेयर टीम विद अस एंड वी आर वेटिंग फॉर नयन भाई हु इज द डायरेक्टर। दे वर ऑल स्टक, ट्रैफिक में फंस गए थे, तो बिफोर दे कैन स्टार्ट आई विल रिक्वेस्ट our chairman Mr. Hemant Shah to come forward and introduce the team. थैंक यू मिस पुरी। नमस्कार, सब लोग कैसे हैं? हम लोग काफ़ी टाइम से बैठे, थोड़ा एनर्जी लेवल आना चाहिए, राइट? सब लोग ने नाश्ता किया? वंडरफुल। खाना मिलेगा, थोड़ा टाइम है उसके लिए। तो सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा मेफेयर टीम को। इनसे मैं कांस्टेंट टच में था। वो लोगों ने 5:30 बजे खार अंधेरी से स्टार्ट किया और इस टाइम पे पहुँच गए। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, उसकी वजह से उनको थोड़ा टाइम लग रहा है। 9 बाय बाकी है, आई थिंक ही इज़ ऑन द वे। 15-20 मिनट में 9 बाय शुड बी हियर, सो ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर। They were a fantastic team. I don't know everyone, but I can introduce some of them. We have Aditya Shah, who is the director. We have Anay Shah, who is the director, जो हमको last time मिले थे. We have Ramesh Tangji, he is the general manager. So Anay and Ramesh जी were present. वो हमारे last meeting में आए थे, जिन्होंने एक presentation दिया था. उसके बाद Shirada, and then I think they have the team of right? So वो आदित्य जी या तो कोई introduction देंगे. To start with, first of all, thank you and congratulations Mayfair team for being here and one of the top 3, I would say the finalists. Hopefully, appreciating you, we'll be going ahead with the best possible. With that, we will not waste too much of time. हम लोग ने थोड़ा देर हो गया, तो I'll invite Aditya sir to start the process. Thank you, Hemant bhai. Ma'am, thank you. Very nice and motivating words. Yes, definitely, truly appreciating you, Hemant bhai, and all of Borivali Hariom Cooperative Housing Society Limited. Thank you for having us. Thank you for shortlisting us, and thank you for showing us faith and putting your trust in us. And we tell you this that आज थोड़ा लेट हो गया, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड प्रोजेक्ट डिलीवरी कभी लेट नहीं होगा। That much I can guarantee you from my side and my team side. That being said, let me quickly introduce my small team that is there over here. I have here with me Anay, my brother. You have already met him. I'm sorry I could not be present for the earlier presentation, but Anay, my brother. Mr. Ramesh Tak, our General Manager, Business Development. We have Mr. Jay Mistry, our Senior Manager, Architect. We have Mr. Zafar from Architect Reza Kabul's office. He's going to be helping us out with the presentation over here. And his team. And I have my other IT team and my other architect team. We have our Business Development team. Mr. Faisal is over there at the back. So thank you. Thanks to my team. We are all here. So, without further ado, I'll start with a short corporate presentation for those who were not present last time. कोई भी
हेमंत भाई मुझे बोल रहे हैं कि आप हिंदी में बात कीजिए, डेफिनेटली सॉरी फॉर दैट, मैं हिंदी में बात करूँगा अभी। एक छोटा सा कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन क्विक रन थ्रू करेंगे। लास्ट टाइम ऑलरेडी आई थिंक अनय ने आपको दिखाया था, जिन्होंने नहीं देखा लास्ट टाइम, जिन्होंने मिस किया उन लोगों के लिए मैं वापस रन थ्रू करता हूँ उसको। सो कंपनीज नेम इज मेफेयर हाउसिंग। It was established by my grandparents in 1964. आज हम लोग को 58 साल हो गए हैं और 59 साल हमारा सालगिरह हमारी सितंबर में आएगी, so we will complete 59 years. Currently we are two generations. हम दो generations फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं। My father is the managing director, Mr. नयन शाह, और मैं और मेरा भाई उनको असिस्ट करते हैं बिजनेस में। just few words from the managing director. ये पूरा presentation I think आपको already submit कर लिया है, right हेमंत भाई, I believe. So I'll just run through. Just few words from me and अनय। ये हमारा mission statement है, to create emotional and financial wealth for all our stakeholders, and that is what we strive and work towards. हमारा vision, to be a highly esteemed global leader in real estate, and values to appreciate each customer and their every need. ये हमारा 1 पेज समरी है कि हम लोग ने लास्ट 58 इयर्स में कितना काम किया है, क्या किया है। 50 प्लस प्रोजेक्ट्स, 25 प्लस सोसाइटीज रीडेवलप्ड, 5000 प्लस हैप्पी फैमिलीज करंटली लिविंग इन मेफेयर होम्स, एंड 50 लाख प्लस स्क्वायर फीट ऑफ TDR डेवलपमेंट, एंड 55 लाख प्लस स्क्वायर फीट ऑफ एक्चुअल रियल एस्टेट डेवलपमेंट, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। तो टोटल 1 करोड़ से ज़्यादा स्क्वायर फुट का डेवलपमेंट हम लोग ने मुंबई में किया हुआ है। दीज आर सम ऑफ द फर्स्ट कि हम लोग पायोनियर्स हैं। सो काफ़ी सारे फर्स्ट हुए हमारे। हम लोग सबसे पहली रियल एस्टेट कंपनी थी जिसको HDFC ने APF दिया था, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स। हम लोग पहली कंपनी थे जो कारपेट एरिया प्राइसिंग पे बात करने लगे थे और कारपेट एरिया प्राइसिंग पे पिच करने लगे थे। सो वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन ट्रांसपेरेंसी एंड टोटल ट्रांसपेरेंसी, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। 2012 में जब भी अमेंडेड DCR आया, वो फ्लावर बेड्स और वो सब का रूल्स निकल के नया रूल आया जहाँ पे 35% फंजिबल मिलना स्टार्ट हो गया। उसमें हमारा ही पहला प्रोजेक्ट था जो अप्रूव हुआ, और तो 2013 में हमारा ही पहला प्रोजेक्ट था जिसको OC मिली है अमेंडेड DCR में इन बॉम्बे। 2013 हम लोग पहले डेवलपर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम डेट एंड टाइम ऑफ OC इन एडवांस कमिट करना स्टार्ट किया, और टचवुड 99% ऑफ द टाइम वी हैव लिव्ड अप टू द कमिटमेंट। 2016 में अगेन हम लोग पहले डेवलपर थे जिन्होंने काउंट डाउन टाइमर साइट पे लगाना स्टार्ट किया, और ऑफ कोर्स आपको पता ही है रेरा है। सो हम 2017 में वी वर द फर्स्ट डेवलपर टू रजिस्टर अंडर रेरा इन द कंट्री। सो टुडे माय registration number for my project Mayfair Vishwaraja in Titwala West is P5170000001. So we are the first ones in the country to register under RERA. Even the RERA chief at the time, Mr. Gautam Chatterjee, had also felicitated us and our brand for this. Like I said कि हम लोग complete transparency रखते हैं, daily practices हमारी एकदम transparent रहती है। Full transparency in title, complete transparency in approvals, complete transparency in carpet area, complete transparency in pricing, and complete transparency in possession and handing over. ये हमारा छोटा सा presence है बॉम्बे में over the last 58 years, 50 plus projects completed, 14 ongoing या upcoming projects है हमारे, और एक मेरा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चालू है। वी आर मेकिंग द टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर्स ऑफ द कंट्री इन बहरीन इन पार्टनरशिप विद अजमेरा रियल्टी एंड इन पार्टनरशिप विद द लोकल डेवलपर। दिस इज आवर बेसिक कमिटमेंट चार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे मेरा डिले भी हुआ है, तो हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग कहते हैं कि हम लोग का डिले हुआ है, एंड वी विल ऑलवेज गिव यू अ रीजन फॉर द डिले, एंड वी विल नेवर से कि नो this or that. We will be very transparent, very clear why the delay has happened, how the delay has happened, how we have rectified it.
रिसेंटली हम लोग ने लास्ट ईयर हमारे एक प्रोजेक्ट का ओसी लिया, ग्राउंड प्लस 34 स्टोरी टावर इन विक्रोली, इट इज़ कॉल्ड मेफेयर द व्यू। वो उसका कमिटमेंट डेट था 30 जून 2022 और हम लोग ने उसका ओसी लाया है 30 जून 2022। ये कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, कंस्ट्रक्शन बंद हो गया, 3 महीने का डिले हुआ। रेरा ने भी हम लोग को 6 महीने का बफर पीरियड दिया था। वी हैव नॉट अवेल्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। 2020 जैन में मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तभी मेरा काउंटडाउन टाइमर लग गया था कि जून 30 2022 को हम ओसी विद पोजेशन देंगे और हम लोग ने वो कमिटमेंट जारी रखा, इवन दो कोविड वाज अ बिग फैक्टर। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दैट वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वी लिव अप टू आवर कमिटमेंट्स। ये हमारे सारे अंडर कंस्ट्रक्शन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का लिस्ट है। दिस इज अ स्मॉल लिस्ट ऑफ ऑल द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। ये सिर्फ मैं रन थ्रू करूंगा। ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का लिस्ट है। These are some of the upcoming projects in the near future. So you can, आप देख सकते हैं हमारा presence city wide है, from Mira Road all the way till Bandra. Even on the eastern side we are upcoming in Mulund and Dadar. Some glimpses of our completed projects. ये हमारा ongoing project है Bandra West में. I believe even by we have already done a site visit at Mayfair Mews and Mayfair Lift. So this also I will run through. We are on track, on time to deliver OC with possession before time in both these projects. This is an upcoming project where I have received the IOD. We have vacated the building in Andheri West, and now we will be demolishing. We are going to start demolishing the building from next week. This is my 5th cluster in Mayfair Virar Gardens. Approximately 1,300 flats in this cluster and 9 buildings. This one of the buildings in this cluster has been completed और उसका OC भी expected है बहुत जल्द. Even विरार जैसे लोकेशन में हम लोग ऐसे modern amenities provide कर रहे हैं just to provide a good lifestyle. We are making विरार का टॉलेस्ट प्राइवेट क्लब हाउस बना रहे हैं हम लोग, ग्राउंड प्लस 8 स्टोरीज का, और इट इज गोइंग टू बी अ फुल ग्लास बिल्डिंग विद प्राइवेट ओनली फॉर द यूज ऑफ द मेंबर्स ऑफ मेफेयर विरार गार्डन्स टाउनशिप। ये हमारा रिसेंटली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, फुल्ली सोल्ड आउट, फुल्ली हैंडेड ओवर, और सभी जो जिसने फ्लैट लिए हैं सभी आके रहने लगे हैं यहाँ पे। सो वी इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल। हमारा ह्यूमन कैपिटल में बहुत इन्वेस्टमेंट रहता है, बिकॉज हम लोग को लगता है द टीम मेक्स द ब्रांड। तो हमारी जो टीम है बहुत डेडिकेटेड, बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत लॉन्ग लास्टिंग टीम है हमारी, जो हमारे साथ इतने सालों से है। हम लोग ने स्टार्ट किया था 50 लोग से, आज हम लोग 250 प्लस लोग हैं कंपनी में, ऑल प्रोफेशनल्स। हमारे हर एक डिपार्टमेंट का इन हाउस वर्किंग होता है, जैसे इवन फॉर आर्किटेक्चर, इवन फॉर इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग इज वर्कड आउट इन हाउस। ये हमारा मेन लाइन ऑफ बिजनेस है, डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट्स एंड प्रॉपर्टीज, रीडेवलपमेंट इन मुंबई सबर्ब्स एंड साउथ मुंबई, एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप्स। तो जैसे आप देख सकते हैं हम लोग और कोई धंधा नहीं करते, दिस इज आवर होल एंड सोल फोकस। हम लोग का एक ही फोकस है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, और हम लोग को कोई दूसरे जगह पे हमारा अटेंशन डाइवर्ट नहीं होता। सो हमारे हर एक फैमिली मेंबर और सब जन इसी सिंगल फोकस के साथ काम करते हैं। ये हमारे बिजनेस स्ट्रेंथ्स है, जस्ट फ्यू बिजनेस स्ट्रेंथ्स: रीडेवलपमेंट, क्वालिटी, अप्रूवल्स, डिजाइंस, कंस्ट्रक्शन, सेल्स, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। ये हमारे लेंडर्स हैं जो हमको कंस्ट्रक्शन फाइनेंस आज के दिन में देते हैं, विद द लाइक्स ऑल द रेप्यूटेड नेम्स। वी डोंट टेक construction finance from any random people. We take it from very reputed names. We have ICICI Bank, we have ICICI Ventures, HDFC, Aditya Birla, State Bank, Tata Capital, Kotak, Saraswat Bank, etc. This is basic solvency certificate of Mayfair Housing. We have a solvency as of 17th April 2023, so very recent. It is of 313 crores, as you can see.
a solvency certificate certified by ICICI Bank and with stamp and sign. This is the net worth certificate. As you can see over here, we have a net worth of 681 crores on book right now, as certified by Chartered Accountant MD Dumasia. And so as you can see, we are very solvent at this stage, and we have a good net worth also. We have a very basic research-driven business and development team of 10 plus experienced professionals who have been with us for a long time. We conduct business with utmost caution and aggressiveness as required, and we ensure that matching the DCR with available development options is always done in the correct way. Some few words of appreciation from our clients. This, of course, we have submitted this presentation, so this can be shown at a... Thank you, appreciating you. ये हमारा छोटा सा कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन था. अब हम आएंगे प्रेजेंटेशन स्पेसिफिक टू बोरीवली हरिओम. तो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ. So now I will start on proposed redevelopment of what you have been waiting for so long. Corporate तो ठीक है, आप लोग एक बार देख लोगे, भूल जाओगे, लेकिन ये जो मुद्दे की बात है उस पे आते हैं. Proposed redevelopment of हरिओम सोसाइटी from Mayfair Group. एक बेसिक साइट स्टडी किया था. So जहाँ पे आपका साइट है, so SV रोड कनेक्टिविटी, बोरीवली हेल्थ केयर, अपना so everything we can see the connectivity plan over here. यहाँ पे साइड से जो व्यूज आते हैं, we have city view on 3 sides, we have संजय गांधी नेशनल पार्क एक साइड पे. अब मैं आता हूँ अपने साइट के लेआउट्स पे. हमने जैसे प्रपोज किया है, बिफोर वी गेट ऑन कम टू द लेआउट्स, आई विल जस्ट लाइक टू गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये लेआउट्स आए हैं मेरे और मेरे आर्किटेक्ट और मेरी टीम के थॉट प्रोसेस से. ये सब्जेक्ट टू चेंज है. आप हम लोग को फीडबैक देंगे तो उस हिसाब से हम आप जैसे चाहिए वैसे हम चेंज करके रीप्लान करके दे सकते हैं. ये सिर्फ एक फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, तो ये आपसे फीडबैक नहीं आया है, तो जस्ट टेक इट इन दैट वे कि दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज, और आपके फीडबैक के हिसाब से हम लोग चेंज ऑलवेज कर सकते हैं. तो यहाँ हमने प्रपोज किया है, आगे जो कमर्शियल विंग आपको दिख रही है, उसके बाजू में हम लोग ने पार्किंग टावर सजेस्ट किया है. ओनली फॉर सेपरेट टावर फॉर कमर्शियल. देयर इज एन अमेनिटी विच वी हैव प्रोवाइडेड. उसके बाद आते हैं प्लॉट पे दैट वी हैव सजेस्टेड. दिस इज द वे वी हैव सजेस्टेड लेआउट. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्रिएशनल एरिया ऑन ग्राउंड वी हैव गिवन ऑलमोस्ट 17,700 स्क्वायर फीट. डबल हाइट लिफ्ट लॉबी, इंटरनल ड्राइववे, अमेनिटी. कमर्शियल इज सेपरेट, दैट हम लोग ने आपको दिखाया पहले, इसके पहले की स्लाइड में. पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ का मार्क किया हुआ है रेड डॉट में.
और मल्टीपर्पज कोड्स भी मार्क किए हुए हैं येलो डॉट्स में। ये रेफरेंस इमेजेस मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आपका पिकअप ड्रॉप लोकेशन कैसा दिख सकता है। ये आपका पिकअप ड्रॉप। ये आपका एंटायर गेट आर्च आएगा यहाँ से। ये आपका पिकअप, ये आपका एंट्री एग्जिट है टू योर न्यू सोसाइटी। ये आपका डबल हाइटेड ब्यूटीफुल एंट्रेंस लॉबी, डबल हाइटेड लार्ज विद ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी विद एक्सेस टू बोथ द विंग्स। ये दूसरा एंगल है एंट्रेंस लॉबी का। जैसे आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस लॉबी हम लोग ने ऐसे डिजाइन किया है कि इट शुड लुक ग्रैंड, पीपल शुड कम होम। जब घर पे आए तो ऐसा लगना चाहिए कि हम एकदम फ्रेश हो गए हैं, 5 स्टार होटल में एंट्री हो रही है, वैसा लगना चाहिए। और लॉबी एरिया अराउंड 12 to 1400 स्क्वायर फीट के जितना आया है अभी, और जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं वो हम करेंगे आपके लिए। ये हम लोग ने जो आपके कमर्शियल यूनिट्स हैं, जो कमर्शियल मेंबर्स हैं, उनको हम लोग ने रोड फेसिंग अकोमोडेट करने की कोशिश की है टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। ऑफ कोर्स जैसे आप फीडबैक देंगे उस हिसाब से हम चेंज करेंगे, उस हिसाब से हम रेक्टिफाई करेंगे। तो लेकिन आज के दिन में हम लोग ने ऐसे प्रोवाइड किया है। Zafar, if you could just quickly give us an idea about the commercial. It's okay. जो 13 मेंबर अभी साइड पर एग्जिस्टिंग है ग्राउंड फ्लोर पे, उन 13 मेंबर को हमने ट्राई किया ग्राउंड फ्लोर पर ही अकोमोडेट करने का। इफ दे आर रेडी टू गो ऑन द फर्स्ट फ्लोर, वी कैन प्रपोज ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑल्सो। अगर नहीं तो 50% एरिया उनको फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए तो फर्स्ट फ्लोर पे भी कर सकते हैं। अभी जो 13 मेंबर है, while designing they are not getting the enough frontage of their own shop. तो फिलहाल अभी हमने उनको as it is ग्राउंड पर ही प्रपोज किया। whatever the requirement you give or your feedback will come, we'll design as per that. These are typical sale commercial floor plan which we propose for the commercial. On A wing, only the ground floor commercial will be there. There is no residential floor on the higher this thing on A wing. So, अभी हम लोग ने किस हिसाब से प्रपोज किया है कि अगेन द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन में बोल रहा हूँ कि अभी फुल कमर्शियल विंग हमने लिया है आगे, कि ग्राउंड फ्लोर पे आपके कमर्शियल मेंबर्स अकोमोडेट हो और ऊपर पूरा विंग हम लोग को कमर्शियल करें। क्योंकि उसमें कैसे होगा फिर देन आपका रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। आपका रेजिडेंशियल पूरा प्राइवेटाइज हो जाएगा। कोई नया कमर्शियल मेंबर्स या कोई अंदर नहीं आ पाएंगे। सारे रेजिडेंशियल मेंबर्स को खुद का स्पेस मिलेगा, कमर्शियल को खुद का स्पेस, खुद का पार्किंग मिलेगा। सो इट विल जस्ट बी बाइफरकेटेड इन अ वेरी वेल प्लान्ड मैनर। क्योंकि हम भी समझते हैं कि आपको ये सोसाइटी रीडेवलप करके 30, 35, 40 साल यहीं गुजारने हैं, तो आगे जाके कोई कमर्शियल रेजिडेंशियल के बीच या ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, तो उस हिसाब से हम लोग ने ये प्लान किया है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि हम मिक्स करें तो डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं। ये ओवरऑल लेआउट है विद द टिपिकल पार्किंग फ्लो। एक पोडियम पे हम लोग ने 95 पार्किंग प्रपोज किए हैं। सो 95 into 6, 570 कार पार्क्स हम लोग ने प्रपोज किए हैं 6 पोडियम्स में टिपिकल। और सारे पोडियम्स पे हम लोग ने ना कार लिफ्ट, ना मैकेनिकल, ना पजल, ना स्टैक, नथिंग, ऑल रैंप असिस्टेड surface ground individual non-dependent parking. That is the biggest amenity. No mechanical, no stack, no puzzle, even we are against it. So we will always try to have ramp assisted podium parking and all ground parking on surface. अभी आपको मैं आपकी amenities दिखाता हूँ। ये अपना
recreational area है, ये अपना E-deck है, entertainment deck, where we have banquet, we have a mini theatre, music room, dance activities, open seating, workstations, media room, infinity pool, pool deck, gym, kids play area and indoor games. तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पूरा डेक, ये पूरा डेक अराउंड 40 से 50,000 स्क्वायर फीट का आपका सिर्फ अमेनिटीज है just for the members of Borivali Hari Om to enjoy for the rest of your lives. So this is something very exciting, very unheard of in a lot of societies. 90% societies में आपको देखने नहीं मिलेगा कि एक सिंगल पोडियम पे 40-50 हज़ार स्क्वायर फीट के सिर्फ अमेनिटीज आए हैं. ये हमारा प्रपोजल है आपको. तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल पोडियम और अमेनिटी बनेगा आपका. Without any vehicular movement on top as of now, without any kind of vehicle, this is purely for only entertainment. ये एक 3D layout है, you can see in a 3D form कि यहाँ पे आपका बड़ा swimming pool, this is your workstation, work from home, your infinity pool, ये आपको 6 podium से full infinity view मिलेगा. ये आपका यहाँ पे मिनी थिएटर है, बैंक्वेट है, योर किड्स प्ले एरिया है, योर सेंट्रल एवेन्यू इज देयर, योर जिम इज देयर, योर एंटायर वर्चुअल गेमिंग एंड गेमिंग जोन इज देयर. ये कुछ व्यूज है जैसे आपका पूल दिखेगा बन के. लाइक आई सेड कि ये बिल्कुल आपको 5 स्टार होटल की फील्स देने का हमारा मकसद है और वही हम लोग अचीव करने की कोशिश करेंगे. ये आपका fully functional and beautiful banquet hall आएगा. Some reference images for your gym and cafe areas. Some reference images for your kids play area, party lawn, आपका amphitheater. ये आपके जो on ground basketball courts, badminton courts, जो आपका 18,000 स्क्वायर फुट का ग्राउंड आएगा, उस पे ये हम लोग प्रपोज कर रहे हैं ऐसे. ये हमारे कुछ लैंडस्केप के रेफरेंस इमेजेस है कि हम लोग लैंडस्केप ऐसे प्लान करेंगे. अभी आते हैं हमारे लेआउट्स पे. सो वी हैव 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. A wing, B wing, 2 wings. ये मेंबर्स के इंडिविजुअल यूनिट्स पे आता हूं मैं. ये हमारा so we have 8 flats of floor on both wings, so 16 flats of floor. We have proposed 6 elevators and 1 fire elevator, 2 staircase on in each wing, so total of 14 elevators including fire elevator and 4 staircases spread across 2 wings. तो अभी मैं मेंबर्स यूनिट्स पे आता हूँ. ये पहला यूनिट है आपका नए कार्पेट एरिया 702.2 स्क्वायर फीट के हिसाब से. वी हैव अ एंट्री पैसेज विद डाइनिंग एंड